ममता बनर्जी का बयान आ रहा है, सुनते हैं। And thanks to press media. But আপনারা জেনে রাখুন এই অপারেশনটা স্টার্ট করেছে ভোর 6টা থেকে, যখন অফিসে কেউ ছিলই না প্রায়, এবং তারা এসে আমাদের পার্টির সব ডেটা, সমস্ত ল্যাপটপ, অনেক যে সমস্ত স্ট্র্যাটেজি আছে ইলেকশনে, ইনক্লুডিং SIR, আমাদের কাজ চলছে মানুষকে সাহায্য করবার জন্য, সেগুলো সব ওরা ফরেন্সিক টিম নিয়ে এসে সকাল থেকে ট্রান্সফার করেছে। আমি মনে করি এটা ক্রাইম। একটা পার্টি অফিসে, এটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন নয়। आवाज क्लियर नहीं आ रही। সবাই জানেন আইপ্যাড আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের, এটা আমাদের অথরাইজড টিম, এবং সেই অথরাইজড টিমের কাছ থেকে সব কাগজ ছিনিয়ে নেওয়া, সব লুট করা, এবং কাগজ টেবিলগুলো পুরো ফাঁকা পড়ে রয়েছে। তার মানে সব কাগজপত্র এবার বলুন আবার নতুন করে তৈরি করতে গেলে ইলেকশন তো পেরিয়ে যাবে। এটা কি ওদের ঠিক হয়েছে? আপনাদের যদি কারো অফিসে ঢুকে, বিশেষ করে আমরা রেজিস্টার্ড পলিটিক্যাল পার্টি, আমরা ইনকাম ট্যাক্স দিই, আমাদের ইলেক্টেড মেম্বার্স আছে, আমাদের অডিট হয়, যদি কোনো প্রয়োজন থাকতো ইডি, তারা ইনকাম ট্যাক্স থেকে কাগজ নিতেই পারত। ইলেকশন আসলে ইনকাম ট্যাক্স নোটিশ পাঠায়, বিজেপিকে তো নোটিশ পাঠায় না। ডাকাত ওরা সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল, মানি পাওয়ার, মাসেল পাওয়ার, কিলার অফ ডেমোক্রেসি। SIR এর নামে they have deleted more than 1.5 crore names. Even they आवाज क्लियर होनी। Nobel জয়ী, they have sent notice to Joy Goswami. We are proud of him. He is a great poet, renowned poet. He is a renowned film star, #1 from Bengal. They have been also sent notices. You will be surprised to know maximum women voters name are being deleted. Why? Maximum young generation, they are not allowing to enlisted their names. Even election commission is not giving us what they say. कह रही है कि इस चुनाव में धन बल, बाहुबल के जोर पर बीजेपी चुनाव जीतने पर आमादा है। SIR के मुद्दे को लेकर एक बार फिर ममता बनर्जी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है, कह रही है चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा है। देखिए आवाज बहुत साफ नहीं है ममता बनर्जी की, लेकिन वो जितना मैं समझ पा रही हूँ उतना आपको बता पा रही हूँ। और इस बीच वहां पर कुछ नारेबाजी भी हो रही है, ममता बनर्जी के समर्थन में वहां नारे भी लग रहे हैं। আগে 54 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছে। Even out of that, nobody is allowed to submit their form number 7 or 8. Even a murderer is allowed to defend himself. But the genuine voters, maximum the women who married recently or earlier after 2, their title is changed and their address is changed automatically because now they became married. चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी
कि जिन वोटर्स के नाम जुड़वाने की कोशिश की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो नाम नहीं जोड़ने दिया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। पीड़ितों को मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो अपनी बात रख सकें, अपना पक्ष रख सकें। 1.5 crore people, maybe about that list also in the name of so-called BJP logistical discrepancies, who are or supporters or the voters, and maximum they are the anti-women. They gave notices to the 90 years old people, the pregnant women, the aged people, the young generation, the renowned persons, all what they think forcefully can they capture a state like this. My humble request to the press, please keep quiet, একটু শান্ত হন। আমার গলাটাও তো মানুষের গলা, আপনারা শান্ত না হলে আমি বলতে পারছি না। যারা কথা বলছেন প্লিজ कीप क्वाइट। आप देखिए, अगर अमित शाह को बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके फ्लो पेपर ले लिया? आप क्यों हमारा बंगाल में एक जो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ऐप का, उसको देके आप एक बीजेपी मार्का को 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया, फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया, फॉर्म 8 भी फिलअप करने नहीं दिया, पीआरओ को नाम मिसयूज किया है, जिसमें एसोसिएशन लेटर भी लिख के प्रोटेस्ट किया है। इसका बाद जो आपका बीएलओ जाके सेटिस्फाइड होके जो नाम उठाया था लिस्ट में, उससे भी आप देखते देखते। देखिए, सीधे सीधे अमित शाह को ललकारती हुई ममता बनर्जी नाम लेकर कह रही हैं कि अगर अमित शाह को बीजेपी को बंगाल जीतना है तो चुनाव लड़कर जीते, हमारे आईटी सेक्टर पर रेड मारकर, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चुराकर ये जीतने के चक्कर में जो बीजेपी है इसकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे। सीधा ललकार रही है ममता बनर्जी। बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। देयर इज नो रिटन डायरेक्शन। उन्होंने बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं, चुनाव आयोग काम कर रहा है, ये आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। एसआईआर में जो सिस्टम रखा गया था बंगाल में वो नहीं मानता है। हमारा होम डिपार्टमेंट का कागज नहीं मानता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का कागज नहीं मानते हैं, यारों को कागज नहीं मानता है। कहता है जो बीजेपी करते हैं खाली उसका नाम वोट में उठेगा और किसी का नाम नहीं उठेगा। अभी तक ममता बनर्जी बड़े आरोप लगाती हुई चुनाव आयोग पर कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। जो सरकारी राज्य सरकार की तरफ से जारी दस्तावेज है उनको भी चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। And 91% along with 72 are seriously hospitalized. Some people went to commit suicide. Some people after coming from the hearing, they are seriously ill, heart attack, brain stroke. Who is responsible for this death? BJP party. They are the great killer of democracy. An IT office, IPL office. How can they do it like this? If I read their party, their IT office, will it be all right? Please remember, one-sided कुछ नहीं हो सकता है।
हाँ, हम अभी तक भी चुप है, इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी, इतना लोगों का खून का बाद में भी, इतना लोगों का जान जाने का बाद भी मैं आशा करती हूँ कि विचार मिलेगा। विचार के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा SIR का डेटा, हमारा पार्टी का पुलिस का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ का लिस्ट, आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, आप हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी का हम बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारे नाम पे काम करते हैं एग्रीमेंट का मुताबिक। I think it is an insult to all the IT sector, because all the IT sector, they are working for somewhere, for someone, so they can attack any IT sector anytime. They can collect all the data from any IT sector. Is it not a crime? Is it not a murder of the freedom, murder of democracy, murder of the right to what? हम अभी इसी में इधर से जो काम है हम कर देंगे, लेकिन जब तक पूरा इसको हम सेटल नहीं करते हैं कि हमारा पेपर निकला कुछ नहीं है, इसको हमको सेटल करना है, इसी के लिए हम इधर में इंतजार करेंगे जब तक प्रतीक नहीं आएंगे और जब तक प्रतीक ऑफिस में आके सेटल नहीं करेंगे। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएंगे। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। 6 बजे शुरू हो गया। तो सीधे निशाने पर बीजेपी को लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी को आप सुन रहे हैं, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को चुनाव जीतना है तो चुनाव लड़कर चुनाव जीते ना, टीएमसी का डेटा चुराकर चुनाव जीतना ये तो टीएमसी नहीं होने देगी। सीधी ललकार ममता बनर्जी की सुन रहे थे आप।